তেওঁ আমাক সুন্দৰকৈ মই আৰু মোৰ পৰিভাষা বুজাই দিলে যে মই এটা শক্তি আৰু মোৰ এইটো হৈছে দেহ আৰু দেহ বিনাশী দেহটোক চলাই থকা মই এটা শক্তি মই যদি মোক নিজকে ভাল পাওঁ মই কেৱল শৰীৰটোৰ কথা ভাবোঁ নিজৰ কথা ভবা নাছিলোঁ যেতিয়া মই শক্তি মই আত্মা শক্তিশালী হওঁ তেতিয়া মোৰ ভিতৰত বহু ধৰণৰ যি মানসিক দুশ্চিন্তা হতাশা এইবিলাক সোমাই আছে এইবিলাক আঁতৰ হ'ব আৰু শাৰীৰিক লগতে মানসিকভাৱে মই সুস্থ হৈ উঠিম আৰু তাকেই সকলো মানৱ আত্মাক ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে শিক্ষা দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰাবৰ কাৰণে এই ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য গতিকে এই বিষয়ে তেওঁ আমাক খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিলে বহুত ধন্যবাদ ৰজনী বাইদেউ আপোনাক ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় অসম ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হয়তো আহিছে যেহেতু গাড়ীৰ শব্দ শুনিছোঁ शायद आ रहा है शायद सुना है মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ক আজি এই সভাগৃহলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কিন্তু বিশেষ এক কাৰণত যেহেতু জাপানীজ এম্বেচেডৰ আহিছিলে তেওঁৰ লগত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হোৱাৰ বাবে তেওঁ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁ আমাৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি মৰম আৰু যি শ্ৰদ্ধা আছে তাক তেওঁ এটা বাৰ্তা হিচাপে আমাৰ সন্মুখত পঠিয়াইছে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে গতিকে মই মোৰ ডাঙৰ ককাইদেউ সুশান্ত ডাঙৰীয়াক তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই বাৰ্তাটো আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি শুনাবলৈ লগতে চাবুৱা বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাদেৱ তেখেতো বিশেষ ৰাজনৈতিক কাৰণত তেওঁলোকৰ এক মিটিং হৈছে দলীয় মিটিং সেই মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে তেওঁ আমাৰ বাবে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এই দুইটি বাৰ্তা আমি শুনিম গতিকে মই সুশান্ত ভাইজিক অনুৰোধ জনাইছোঁ বাৰ্তা দুটি পঢ়ি শুনাবলৈ ওম শান্তি আপোনালোকে বহুত সময় ধৰি বৰ ধৈৰ্যৰে বহি আছে ইয়াৰ পিছত খুব ভাল খবৰ এটা দিব বাইদেৱে তাৰ আগতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱে তেখেতৰ অহাৰ কথা আছিল আমি 2-3বাৰ লগো পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ নামটো আমি চিঠিত দিছিলোঁ তেখেতৰ কথা মতে কিন্তু জাপানৰ যিজন এম্বেচেডৰ দিল্লীত আছে তেখেতে হঠাতে তেওঁৰ লগত এটা এপইণ্টমেণ্ট ল'ব খুজিলে সেইকাৰণে আজি তেখেত আহিব নোৱাৰিলে আজি জাপানীজ এম্বেচেডৰৰ লগত তেখেতৰ বৈঠক আছে কিন্তু তেখেতে এটা শুভেচ্ছা বাণী আমালৈ পঠিয়াইছে সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত জ্ঞাতাৰ্থে পঢ়ি দিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী অসম দিছপুৰ 13/2 যোৱাকালিৰ প্ৰথমতে তেওঁ কৈছে ওম শান্তি তাৰপিছত কৈছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী তিনিচুকীয়া সংগঠনৰ দ্বাৰা ৰংপুৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পিচ ভেলী ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে তিনিচুকীয়া সংগঠনৰ মুখ্য প্ৰশাসিকা বাইদেউ যে গ'ল তেখেতৰ কথা কৈছে সত্যৱতী দিদি প্ৰমুখ্যে সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমিও তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আধ্যাত্মিক ধ্যান ধাৰণাই সমাজক সঠিক পথৰ সন্ধান দিয়ে ঈশ্বৰ ভক্তি হৈছে শান্তি প্ৰাপ্তিৰ একমাত্ৰ পথ সমাজত আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ দিশত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী অনুষ্ঠানে আৰম্ভণিৰে পৰা যি প্ৰচেষ্টা লৈ আহিছে সেয়া প্ৰেৰণাদায়ক আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছোঁ যিসকল প্ৰথমবাৰ আহিছে যোৱা 85 বছৰৰ পৰা এই আমাৰ অনুষ্ঠানটিয়ে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কাম কৰি আছে তিনিচুকীয়াৰ ৰংপুৰীয়া অঞ্চলত স্থাপন কৰা ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰে জনসাধাৰণক আধ্যাত্মিক চেতনা তথা বৌদ্ধিক আৰু সামগ্ৰিক জ্ঞান বিকাশৰ দিশত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ এনে এক মহান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে যি উদ্যোগ লোৱা হ'ল
নিঃসন্দেহে আমাৰ বৃহত্তৰ সমাজখনৰ বাবে এক প্ৰেৰণাদায়ক দিশ। এই অনুষ্ঠানত সশৰীৰে উপস্থিত থকা বাবে মোৰ একান্ত ইচ্ছা থকা সত্ত্বেও চৰকাৰী ব্যস্ততাৰ হেতু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াৰ বাবে মই অত্যন্ত দুখিত। সদৌ শেষত এই অনুষ্ঠানটিৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ সফলতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী। তাৰপিছতে চাবুৱা সমষ্টিৰ যি MLA, তেখেতৰ ইয়াত অহা কথা আছিল, আপোনালোকে পাইছে, চিঠিটো লিখা আছে বিনোদ হাজৰিকাদেৱ। অলপ আগতে তেওঁ এটা মেছেজ পঠিয়াইছে সংক্ষেপে। তেওঁ কৈছে, due to an important meeting held at Dibrugarh DC Conference Hall and my presence at this meeting is so important, so I will not be able to present at your program. My best wishes are with you. Thank you, sir. আৰু আপোনালোকে চিঠিত পাইছে আমাৰ যি তিনিচুকীয়াৰ সঞ্জীৱ ভাই, অকমান বহা। তিনিচুকীয়াৰ যি আমাৰ মিনিষ্টাৰ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, তেখেত আৰু চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োজন আহি পেলাই এখন মিটিঙত বহি আছে। আৰু আপোনালোকে জানে ইলেকশ্যনৰ এইটো পৰিৱেশ চলি আছে, তাত ৰাজনৈতিক দিশত বহুত কিবা কিবি হয়, যিটো কাৰণে তেওঁলোকৰ স্বইচ্ছা সদিচ্ছা থকা সত্ত্বেও বহুত সময়ত কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ আপোনালোকক লৈ পেলাই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সকলোৰে সদিচ্ছা তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিল। আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, তেওঁলোকে বহুত সহায় আমাক আগবঢ়াই আছে, আগলৈও বঢ়াব বুলি তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে। আৰু এটা কথা লগতে কওঁ, বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোৰ নাম কি? ৰংপুৰীয়া। চাওক, কেতবোৰ মানুহে বহুত কিছু কৰি পেলাই কম পায়, কেতবোৰে একো নকৰাকৈ বহুত পায়। সেই একো নকৰাকৈ বহুত পোৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নামটো আহিছে। কেনেকৈ? ৰংপুৰীয়াত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হ'ব বুলি আমি নিজেই ভবা নাছিলোঁ, আপোনালোকেতো ভবাই নাছিলে। গতিকে এতিয়া এইটোৰ লাভ ল'ব লাগে আপোনালোকে। সেইকাৰণে এই বাইদেউহঁতক চাওক, নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি মানুহৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে অহৰহ তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আছে। আৰু সেই তেনেধৰণৰ সেৱা স্থান এইটো। আৰু ৰজনী বাইদেউ আৰু মৃত্যুঞ্জয় ভাই যি ধৰণে বুজাই ক'লে, আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে যে এই অনুষ্ঠানটোৰ মহত্ব ক'ত আৰু আপোনালোকৰ মোৰ জীৱনত ই কেনেকৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পাছত মই ভাইজি, তেওঁ আমাক সুন্দৰকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বাৰ্তা আৰু MLA মহোদয়ৰ বাৰ্তা আমাৰ আগত পঢ়ি শুনালে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া মই এই ভূমি যি আমাক প্ৰদান কৰিলে সুধীৰ লোহৰীয়া ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাক এই ভূমি দি আমাক বহুত উপকৃত কৰিলে। এই অনুষ্ঠানটি গঢ় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতকো দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক আমি এটা ঈশ্বৰীয় উপহাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। গতিকে ঈশ্বৰীয় উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় ভাইজি আৰু ৰজনী বাইদেৱে। আপোনালোক সকলোৱে হাত চাপৰি বজাওক, কাৰণ কেলৈ তেখেতৰ এই সহযোগিতা নথকাহেঁতেন কেতিয়াও এনে এটি মনোমোহা গৃহ ইয়াত নিৰ্মাণ নহ'লহেঁতেন আৰু আমিবিলাকে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা লাভ ল'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে তেখেতৰ বৰঙণি, তেখেতৰ উদাৰ মানসিকতা সদায় আমি সুঁৱৰি থাকিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ সুধীৰ ভাইজি, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। आज का दिन ये बहुत ही शुभ है हमारे लिए और शिव बाबा के आशीर्वाद से आज इतना सम्मान मिला, मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। এতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত উপনীত হৈছোহি। এতিয়া শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। গতিকে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই আমাৰ সুশান্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ওম শান্তি। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শেষ মুহূৰ্তত, যিকোনো অনুষ্ঠানৰ শেষ মুহূৰ্তত এইটো যিটো শলাগৰ শৰাইৰ সময়, তাৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰাটো বৰ টান মই বুজি পাইছোঁ।
সকলোৰে এতিয়া খোৱাৰ সময় ভোজনৰ সময় তথাপি আনুষ্ঠানিকতা বজাই ৰাখি কিন্তু আন্তৰিকতাৰ সৈতে আপোনালোক যিসকল ইয়াত আহিছে ইমান সময় নষ্ট কৰি নিজৰ আপুৰুগীয়া সময় দি পেলাই আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিজৰ কাৰণে এটা চাপৰি বজাওক ইয়াৰ পিছত সুদূৰ মাউণ্ট আবু ৰাজস্থান আৰু ভাই সাহেব কালি আহিছে মৃত্যুঞ্জয় ভাই বম্বেৰ পৰা তেখেতে এই অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াইছে বুলি আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয় তেখেতক আমাৰ সংগঠনৰ এই তিনিচুকীয়া সাবজোন চেণ্টাৰৰ সকলো ভাই ভনীৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুধীৰ লোহিয়াজী তেখেত আমাৰ মাজত আছে তেখেতৰ মাক বিশেষকৈ তেখেত আজি শৰীৰ বেয়া থকাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে শহুৰেক পুতেকক আৰু বোৱাৰীয়েকক পঠিয়াইছে আপুনি চাওক পইচা অনেকেই ঘটে অনেকে ব্যৱসায় কৰে কিন্তু এনেকুৱা ভাল ঠাইৰ কাৰণে ক'ৰবাত মাটি এডোখৰ দিছে কিমান ডাঙৰ মহানুভৱতাৰ কাম কৰিছে গতিকে সেই পৰিয়ালটিলৈ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ সুধীৰ जी आपका पूरा परिवार के लिए आप स्वीकार कीजिए इसका पश्चात हमारे बड़े बहन जी सत्यवती বাইদেউ আপোনালোকে দেখিলে কি স্বাস্থ্য লৈ পেলাই 90 বছৰ বয়সত আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হলি সেই বাইদেউ প্ৰেৰণা যোৱা 65টা বছৰে তাৰ ফলস্বৰূপে আমি এইবিলাক পাইছোঁ মই এজন উকিল মানুহ উকিলে সাধাৰণতে এইবোৰ কামত নাহে মোক অনাৰ পিছত তেখেতৰ বহুত অনবদ্য অৱদান আছে ইয়াত মোৰ কেইবাজনো বন্ধু স্থানীয় মোৰ ভাই স্থানীয় মোতকৈ ডাঙৰ এনেকুৱা কেইবাজনো আহিছে যাক মই নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ তেওঁলোকে এটা কথা সোধে ঠাকুৰীয়া ভাই আপুনি ইমান হাঁহি মুখে কেনেকৈ থাকে এতিয়া আজিকালিৰ দিনত হাঁহি মুখে থাকিবলৈ মানুহে ভাবে টকা এসোপা লাগে সেইটোতো মোৰ নাই এতিয়া কথা হ'ল কি শলাগৰ শৰাইত সেই ডাঙৰ বাইদেউ লগতে এই শিৱসাগৰৰ পৰা অহা ডাঙৰ ৰজনী বাইদেউ তাৰ কাষতে বহি থকা আমাৰ সৰু ৰজনী বাইদেউ আৰু যিমান বাইদেউসকল আছে সব সমৰ্পিতা এই বাইদেউগৰাকী আহিছে মাউণ্ট আবুৰ পৰা আপুনি ভাবক এইটো বয়সত এনেকুৱা ধৰণৰ গাভৰু ছোৱালীয়ে কি কৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰি আছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ বাইদেউসকলক এখেতসকলকে আদি কৰি আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আমি আন্তৰিক ধন্যবাদৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠোতে আৰু আজিৰ কাৰ্যক্ৰম সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ লগত জড়িত ইয়াত থকা বা নথকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আন্তৰিকতাৰে আগবঢ়াইছোঁ যিসকলে ইয়াত নানান ধৰণৰ মিউজিকেল যি নাচে দেখুৱালে বা গানে গালে যিয়ে কৰিলে তেওঁলোকক আটাইকে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ লগতে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ যি মিডিয়া পাৰ্চনসকল আছে সাংবাদিকসকল তেওঁলোকে আমাক বহুত সহযোগ আগবঢ়াইছে নানান সময়ত এতিয়াও বঢ়াই আছে তেওঁলোক যদিও আজি আহিব পৰা নাই তেওঁলোকলৈও আমাৰ ধন্যবাদৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ আৰু কোন থাকিল বাইদেউ ডান্স কৰাৰ কথাটো ক'লোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ্তাৰ কাৰণে ধন্যবাদটো এবাৰ দিছোঁ দুনাই দিছোঁ সেয়াও আমাৰ কাৰণে কম আমি তেখেতসকলে আৰু ধন্যবাদৰ পাত্ৰ নহয় সেইটোতো পাছত একদম শেষত আৰু ঠিক আছে আৰু এটা কথাত এতিয়া ধৰক যাক ধন্যবাদ দিলোঁ কাৰোবাক আপোনালোকে চিনি পায় কাৰোবাক চিনি নাপায় কিন্তু আমি ইয়াত থকা নথকা পৃথিৱীৰ 800 কোটি মানুহে যাক চিনি পোৱাৰ চেষ্টা কৰে
প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেখেতৰ পৰা কিবা বিচাৰে, তেওঁ হ'ল পৰমাত্মা শিৱ বাবা নিৰাকাৰ। কোনোবাই আল্লাহ বুলি কয়, কোনোবাই গড বুলি কয়, কোনোবাই জেহোভা বুলি কয়। তেখেতক ধন্যবাদ নিদিয়াকৈ আমাৰ কাম জানো সম্পূৰ্ণ হ'ব? গতিকে সেইজনা ঈশ্বৰক, সেইজনা শিৱ বাবাক আমি ইয়াত থকা ব্ৰহ্মাকুমাৰীজৰে হওক বা ব্ৰহ্মাকুমাৰীজত নিমন্ত্ৰণ কৰি অহা সকলে হওক, সকলোৰে ফালৰ পৰা আন্তৰিক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ওম শান্তি। আমাৰ মৰমৰ সুশান্ত ভাইজিকো, তেখেতকো আমি ইমান সুন্দৰকৈ আমাক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে তেখেতলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত উপনীত হৈছোঁহি। এতিয়া 3 মিনিট আমি সেই পৰম শক্তি সৰ্বোচ্চ সত্তা পৰম পিতা পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে এটি ঘোষণা আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। অহা কাইলৈ 15 তাৰিখ আমাৰ আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে, যিটো ৰজনী বাইদেৱে উল্লেখ কৰিলে যে 26 গৰাকী কুমাৰীৰ সমৰ্পণ অনুষ্ঠান, ঈশ্বৰী সেৱাত তেওঁলোকে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছে, তাৰ সমৰ্পণ অনুষ্ঠান এটা আছে। ইমান এক মহান কৰ্তব্য তেওঁলোকে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠান আছে। আপোনালোক সকলোকে উপস্থিত থাকিবলৈ এই চেগতে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ব্ৰহ্মা ভোজন। গতিকে সকলোৱে ব্ৰহ্মা ভোজন গ্ৰহণ কৰিহে যায়। এতিয়া আমি 3 মিনিট পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ স্মৰণ কৰিম আৰু তাৰপিছত এই গৃহৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিম। ওম শান্তি। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ। আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে যি কাৰ্যসূচী আছিল আজি ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো আমাৰ ভাইকেইজনে মানে গীত পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে কোনো আপোনালোকে সেই নৃত্যৰ গীত উপভোগ কৰিব পাৰিব। मुरली सी कर दीनी हो बाबा, मुरली बजा के, मुरली बजा के बाबा अपना बना के, मुरली बजा के बाबा अपना बना के, शुद्ध बुद्ध सब हर लीनी हो बाबा, मुरली बजा के। छाप तिलक सब छीनी हो बाबा, मुरली बजा के। प्रेम भटिकारे मधुआ पिलाई के,
प्रेम भटिका रे मधुबा पिलाई के, मधुबा पिलाई के बाबा मधुबा पिलाई के रे, प्रेम भटिका रे मधुबा पिलाई के, मतवारी कर दीनी हो बाबा मुरली बजा के, मतवारी कर दीनी हो बाबा मुरली बजा के, मुरली बजा के बाबा अपना बना के, मुरली बजा के बाबा अपना बना के, शुद्ध बुद्ध सब हर लीनी हो बाबा मुरली बजा के, छाप तिलक सब छीनी हो बाबा मुरली बजा के। ओम शांति। এগৰাকী দুগৰাকী কুমাৰী গীতা পাঠশালাৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছে। আহা।
तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा आज से पहले खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। याद की यात्रा एक ही बार होती है, तो वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा तो यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम। तो तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं, है ना। हम बच्चे शिव जयंती पर क्या करते हैं, शिव बाबा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना। हैप्पी बर्थडे बाबा, अच्छा हुआ आप आए। खुशियाँ मनाते हैं, बाबा के केक काटते हैं कि शिव बाबा का जन्म दिवस है, भगवान धरती पर अवतरित हुए, उसकी खुशियाँ मनाते हैं। तो बाबा फिर हम बच्चों को क्या कहते हैं, तत्त्वम। तो बाबा का जन्मदिन तो बच्चों का भी जन्मदिन।
तो हमारी भी तो नया जागरण हो गया ना, हम सबका भी, हम भी जाग गए, हमारा भी नया जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म मिला। तो बाबा कहते इसलिए वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। तो बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। तो सभी आत्माएं क्या हो गए? सुबह पहले क्या बताया था? और पतंग। हाँ, तो तुम सब आत्माएं क्या हो गए? पतंगे हो। सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, तो सब वह सबको ले जाएगा। हाँ, सबकी डोर पकड़ के एक साथ सबको ले जाएगा। तो सर्व के सदगति दाता है ना। तो परंतु बाबा कहते तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। फिर दूसरा पॉइंट है, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। फिर आज का वरदान, बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। बाबा ने हम बच्चों को पहले से स्थिति बताई है कि हम बच्चों की स्थिति अंत में कैसी होने वाली है। हाँ? जैसे दुनिया से लगाव ही खत्म हो जाएगा, रिश्तों में भी लगाव नहीं रहेगा। तो बाबा कहते धीरे धीरे बच्चों की उपराम स्थिति बनेगी, कर्मातीत स्थिति बनेगी, तो ज़्यादा साइलेंस में रहने की आदत हो जाएगी। तो जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। तो इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। जैसे हमने दादियों को देखा ना, तो दादी जानकी को आपने देखा कि दादी ने जब शरीर छोड़ रहे थे ना, उससे पहले दादी की स्थिति इतनी, जैसे पता है कितनी आत्माओं को स्वप्न आता था दादी का, जैसे दादी उनके सपने में आकर के भी उनको शक्ति देने का काम कर रही है। तो इतनी साइलेंस की स्थिति में थी दादी कि कितनी आत्माओं को सारे विश्व भर में, जैसे
कितनी अंजलि दे करके गई, कितनी शक्ति दे करके गई। तो बाबा कहते फिर ऐसी स्थिति में आप अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। तो यह पावरफुल स्थिति ही कौन सी स्थिति है? विश्व कल्याणकारी स्थिति है ना, कि मन एकदम शांत हो, अतीन्द्रिय सुख में हो और आप सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। तो इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। हाँ? फिर आज का स्लोगन है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हम तो बाबा का एक विशेष संगठन है। इस संगठन की अनेकों विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेष आत्माओं से बना हुआ ये संगठन है ना। तो हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता तो है, कोई ना कोई गुण है, क्वालिटी है। तभी तो बाबा ने हमको चुन करके यहाँ बुलाया है, यहाँ रखा है। तो अपनी विशेषताओं को हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरे के अंदर भी वो विशेषताएं देखने का गुण होना चाहिए, है ना। कमियां नहीं देखें, गुण देखें। तो दूसरे की विशेषताएं देखेंगे तो बाबा कहते यही फेथफुल बनना है। हाँ, और इससे आपका संगठन मजबूत होगा, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, रिगार्ड बढ़ेगा, एक दूसरे का को सहयोग की भावना अंदर में पैदा होगी, यूनिटी आएगी। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और सभी को उस घड़ी का इंतज़ार है जब 26 कन्याएं प्रभु को समर्पित होंगी और ये समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे तो दुनिया में बहुत प्रकार के आपने शादी विवाह के उत्सव देखे हैं और उसमें क्या क्या होता है वो सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु के संग विवाह समारोह होने वाला है ये एकदम अलौकिक है, दिव्य है और मनमोहक भी है, आकर्षक भी है और रूहानियत से भरा हुआ होगा। तो इसलिए सभी उस पल का इंतज़ार दिल थाम के कर ही रहे हैं। और आज एक और खुशी की बात है कि इस समर्पण समारोह के लिए खास शारदा दीदी जी अहमदाबाद से हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, है ना। तो वो अचानक से ही दीदी को जब निमंत्रण दिया गया, क्योंकि आशा दीदी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था और इस समर्पण समारोह में यदि कोई सामने बड़े ना हो, आदरणीय बड़ी दीदी जी तो हैं ही हैं, लेकिन उनके भी साथी सहयोगी उनके ही समान तो चाहिए कोई। इसलिए फिर शारदा दीदी जी को निमंत्रण दिया और 2 दिन पहले ही उनको निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है। तो ये भी हम देखते हैं कि बड़ों के अंदर कितनी निर्माणता होती है। कई तो कहेंगे हमको तो पहले से क्यों नहीं बोला, जब कोई नहीं मिला तो हमको बोला जा रहा है ना। ऐसे एक ये होता है ईगो का संस्कार। लेकिन हम लोगों ने ये सीखा है दीदियों से, दादियों से कि निर्माणता होनी चाहिए। बाबा भी कहता है ना, सेवा की सफलता तभी होती है जब हमारे संस्कारों में निर्माणता हो। तो ये एक बहुत ही खुशी की भी बात हो गई कि दीदी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। लगभग अभी 9:30 बजे उनका फ़्लाइट लैंड हुआ है। पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे
और प्रोग्राम भी तब शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कुछ कल्चरल प्रोग्राम बहुत सुंदर सुंदर हैं, वो भी शुरू होते रहेंगे और आप उस सब का आनंद लेंगे, क्योंकि आज तो आनंद का दिन है, खुशियों का दिन है, नाचने गाने का दिन है। आप सबका भी मन करेगा फिर हम भी नाचें, ठीक है ना, ऐसा करेगा ना। तो देखिए अभी लता दीदी आ रहे हैं, वो आगे के प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। सोमवार को सभी को मालूम ही है कि शिव के ऊपर बेलपत्री, जल, दूध सब अर्पण करने के लिए शिव के मंदिर में भक्तगण बहुत श्रद्धा से जाते हैं। तो आज तो ये दिन इतना सुंदर और श्रेष्ठ दिन है जो कि हम सभी के बीच आज जैसा इसका रिट्रीट सेंटर का नाम है और वैसा ही समारोह है, क्योंकि एक साथ आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि 26 बहनों का आज समर्पण समारोह है। तो 26 बहनें एक साथ प्रभु के ऊपर अर्पण आज के दिन हो रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे तो प्रोग्राम को शुरू कर सकेंगे। तो अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत पहले 3 मिनट बाबा की याद से शुरू करेंगे और उसके बाद जो है ना वो गीतों की सुबह उससे शुरू होगी प्रोग्राम की शुरुआत। तो सभी पहले बाबा की याद में, मीठे बाबा की याद में प्यार से बैठेंगे और 3 मिनट योग के पश्चात हम फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी के समक्ष सुशीला माता जी तिनसुकिया से हैं। काफ़ी समय हो गया बाबा के घर में रेगुलर आती भी हैं। बहुत सुंदर राजस्थानी गीत आप सभी के समक्ष रखेंगी सुशीला माता जी। शिव साजन के विषय में एक गीत गा रही हूँ राजस्थानी। साजन तो हम सब साजन तो है ही है, मेरे सजनिया, हम सभी भाई बहन सभी सजनिया है। आओ जी पधारो शिव साजन जी, मैं पल के निहारो तोरी बाट, पधारो जी के सैया, मैं पल के निहारो तोरी बाट, पधारो जी के सैया, हर पल रोहूं तोरी बाट, मोरा जिएरा कर जी इंतजार, ओ बाबा के शरिया, आओ जी पधार शिव साजन जी, मैं पल के निहारू तोरी बाट, ओ बाबा के शरिया, कहूँ तो पिया जी आन मन में बसालू, कोई कहो तो पिया जी धान नहीं नाम रमालू, बनालू थान की वेड़े रोहार, ओ बाबा के शरिया, बन जाऊं थारो ही वेड़े रोहार, ओ बाबा के शरिया, आओ जी पधारो
शिव साजन जी मैं पल के निहारू तोरी बाट पधारो जी केसरिया कहो पंछी उड़े जू मन उड़े उड़े जावे था भी न माने घड़िए ना तव जी था की घनिए करुली मनुहार ओ बाबा के शहरी ओ जी थारी घड़िए करुली मनुहार ओ बाबा के शहरिया आओ जी पधारो शिव साजन जी मैं पल के निहारू तोरी बाट पधारो जी बाबा मैं पल के निहारू तोरी बाट ओ बाबा केस मैं मोतियन चौक पुराऊं ओ बाबा पधारो जी केसरिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला माता जी को। हमारे बीच कल, क्योंकि राजस्थान तो अपना हेडक्वार्टर है, परमानेंट एड्रेस हम सभी का हेडक्वार्टर है, इसलिए शुरुआत ही राजस्थानी गीत से हुई है। अभी फिर से कुलदीप भाई का एक गीत गाएंगे और आप सभी को पता हो कि ये धमाजी से ज्ञान प्राप्त किया और 12 वर्ष से मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में सेवाएं दे रहे हैं। तो हम कुलदीप भाई से अनुरोध करते हैं कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें हम सभी के समक्ष। हेलो, आरज़ू है आप पर अपने अब अर्पण करे। आरज़ू है आप पर अपने अब अर्पण करे। आपके कदमों पे चल कर नाम हम रोशन करे। आरज़ू है आप पर। श्वास और संकल्प से बच आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भाना अभिमान हो। भाना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो। कल्याणमय चिंतन करे। आपके कदमों पे चल कर नाम हम रोशन करे।
आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा आपके होकर रहे। मन वचन और कर्म अपने सेवा से तत्पर रहे, सेवा में तत्पर रहे। दिल के दर्पण से सभी नित्य आपका दर्शन करे, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करे। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू है बाबा, सदा ही मन को छाया है, सदा ही मन को भाया है। दिल की दुनिया दे दिखाई, देवी गुण धारण करे। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करे। आरज़ू है आप पर, अपने अब अर्पण करे। ओम शांति। पूनम बहन में आज मैं बाबा की एक गीत गाऊंगी बाबा की याद से। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देखिए संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देखिए संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजले चमन में फिर से यूं फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। जिस दिन
जिसने मुझको अपना बना लिया है। बाजे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना कह दिया है। वो ज्योति बिंदु से उसे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। अभी तो समय ऐसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मधुबन की संख्याएं बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ग्रुप में ये 13 तारीख को बाबा मिलन था ना, मैंने यहाँ से फ़ोन करके पूछा था, 6000 की परमिशन दिया गया था, लेकिन 4000 आए थे। क्योंकि अभी लोग डरे हुए हैं, खुद भी डरे हुए हैं निकलने के लिए, लेकिन वो बहुत लोग नहीं आए, कैंसिल हुआ है। इसलिए धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं मधुबन के द्वार। आप भी आइए, जो नहीं आए, जिसने माता पिता कन्याओं को दान किए है, वो ज़रूर आइए। अपने बेटी को कौन से संस्था पे आपने दिया है, कहाँ दिया है, वो जानना ज़रूरी है ना। जैसे हम शादी करने के लिए देखते हैं, पहले पूछते हैं कौन सी खानदान के हैं, उनकी 2-3 पीढ़ी तक हम जाते हैं, इसके पीढ़ी में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ऐसे कुछ बातें तो नहीं है, सारे देखते हैं। तो इसी तरह आपने जिसको संस्था में जिसको आप बेटी को सौंपने जा रहे हैं, ज़रूर वो आके देखिए क्या है ये। तो तब वहाँ आएंगे, जब मधुबन जिसको माउंट आबू में राजस्थान में है, वहाँ आएंगे तब पता चलेगा कि ब्रह्मा कुमारी इस रियल में क्या है। आपको सही सही बता दूं, जो ज्ञान में चल रहे वो तो जानते ही हैं, जो नहीं चल रहे हैं उनको बता दूं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया संस्था है, जिसको हम संस्था भी बोलते हैं, आश्रम भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जगह पर आप अपने कन्या को समर्पित करने जा रहे हैं। और जो साथ में आए हैं उनके मित्र संबंधी है, उन सभी को निमंत्रण देता हो, आइए, आप मोस्टली वेलकम है मधुबन में। मतलब हमारे बेहर घर, इस ब्राह्मण परिवार की बेहर परिवार में आप सभी को निमंत्रण है, आइए, आप सभी को वहाँ हम सेवा के लिए उपस्थित है। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओम शांति। पौरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपना प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव सुनाते हुए हम सभी को भी अनुभवी बनाया, इसलिए पुनः हम धन्यवाद देते हुए जमुना बहन को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना एक गीत प्रस्तुत करें। जमुना बहन निर्जली सेंटर से आई हैं। जमुना बहन। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो हमारी बहुत प्यारी प्यारी बहनों का समर्पण होने जा रहे हैं, इसलिए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। कुछ गीत हमने तैयारी किया है। ऑलरेडी ये फिल्मों का गीत है, लेकिन उसमें थोड़ा बाबा का शब्द शामिल किया है, क्योंकि दुनिया में तो शरीरधारियों के साथ प्यार होता है, वादा किया जाता है, और यहाँ हम सभी बहनें परम पिता परमात्मा शिव साजन के साथ समर्पित होने के लिए वादा करते हैं। तो आज सुनते हैं, और आप लोग थोड़ा तालियों से हमें सहयोग दें, क्योंकि हम गायिका तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुशियों का, दिल का खुशियों का गीत है, इसलिए आपका सहयोग मिले तो हमें और भी उमंग आएगा गाने के लिए। ओ साजन, ओ शिव साजन, ओ साजन, ओ शिव साजन। बाबा मुझे अपना साथी बना लो, बाबा मुझे अपना साथी
साथी बना लो, अब न रहेंगी इसी दुनिया में, अब न रहेंगी इसी दुनिया में। बाबा मुझे अपना साथी बना ले, ओ, ओ, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, ये लोगों हमें याद करेंगे। बाबा मुझे अपना साथी बना ले, हम भूले तो बाबा हमें याद दिलाए, हम रूठे तो बाबा हमें मना लो, हम भूले तो बाबा याद दिलाए, हम भूले तो हमें मना लेना। हमने आज क्या है वादा, आज कसम उठाई, बाबा मुझे अपना साथी बना ले, बाबा मुझे अपना साथी बना ले, अब ना रहेंगी इसी दुनिया में, अब ना रहेंगी इसी दुनिया में। ओ, 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 यादें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा लेकर हम जागे हो। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे। बाबा हमें मुझे साथी बना लो, अब न रहेंगी इसी दुनिया में। बाबा मुझे अपना साथी बना लो, बाबा मुझे अपना साथी बना ले, अब न रहेंगी इसी दुनिया में, अब न रहेंगी इसी दुनिया में। बाबा मुझे अपना साथी बना ले। थैंक यू। एक बार जोर से थोड़ा देखें तो कि आज के प्रोग्राम का कितना उमंग आप सभी को है, क्योंकि अभी हमारे सामने अभी तो आप लोग पास हो गए भाई सभी बहुत अच्छी तरह से हैं। अभी बहनें भी सभी समर्पित बहनें भी पहुंचने वाली हैं, तो उसके पहले मैं एक गीत प्रस्तुत करने के लिए बोल रही हूँ। जमुना बहन